So friends, you can see when I providing the 12 volt supply, this water pump is properly work. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all friends. So friends, in this video I am going to show you how to make this LED driver circuit. The video is consist on two parts. In first part, I am completely described the building procedure of this LED driver circuit in English, and in part B, I am completely describe the building procedure of this circuit in Urdu. मतलब कि दोस्तों, वीडियो को पहले हिस्से में मैं इस सर्किट को इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा और वीडियो के पार्ट बी में मैं इस सर्किट को So before wasting of more time, let's start to build this LED bulb. So firstly, simple material is required. Firstly, we need a bridge rectifier. The bridge rectifier is consist on 4 pins which convert our AC input into DC, and further we need some SMD resistors. First SMD resistor is required 1 mega ohm and its code is 105. Second SMD resistor is required 68 ohm and its code is 680. And third SMD resistor is required 22 ohm and its code is 220. And further 2 electrolytic capacitor required. And their value is 6.8 microfarad, 450 volts. If these two capacitors are not available, then use 10 microfarad, 400 volts instead of this. So this one is a dead computer motherboard. So in this board multiple capacitors and chips, SMD resistors, fixed capacitors, transistors. So these all are transistors. So first I need a bridge rectifier. So this one is a bridge rectifier.
So this one is our 12 volt power supply, and I am using these two polarized capacitor from this kit, and we also need a MOV from this breadboard. So by using this solder iron, I just desolder these two polarized capacitor and this one MOV. So firstly I find SMD resistors. So this one is SMD resistor 1 mega ohm and its code is 105, and further a SMD resistor 68 ohm and its code is 680. Further I find SMD resistor and its code is 220. Multiple electrolyte capacitors are available, but we need 6.8 microfarad, 400 volts. The first one is this one and second one is this 6.8 microfarad and 400 volts. So by using this heat gun, firstly I desolder. So I turn on my heat gun and trying to desolder SMD resistors, digit rectifier and these two capacitors. So these are our SMD resistors and these two are capacitor. Cutting a small piece of PCB board. So this one the complete electronics component. This one is our bridge rectifier, SMD resistor, second SMD resistor. This one is SMD resistor, two electrolyte capacitor, non-polarized capacitor and a MOV. So by completing the material or electronics component, this one is a PCB board. So I am draw this circuit on this PCB and then further solder the all components by using this soldering iron. So this one is the LED bulb driver circuit. So
So this is AC supply input points. Use a MOV in parallel, and further use two capacitors polarized and in parallel a 1 megaohm resistor. Further, next a bridge rectifier and electrolytic capacitor 6.8 microfarad 450 volts. Then further use 22 ohm resistor and again a 6.8 microfarad capacitor in parallel, and further 1 megaohm resistor in the parallel, and the output positive and negative points for LED kit. So friends, I solder all my components on this board, and this one is AC input supply points, and this one is output DC points. So I am just solder these point to this kit and pointing AC supply from this point. So now I am providing 220 voltage to this circuit. So it's amazingly work. Too much brightness from this circuit. तो फ्रेंड्स, पार्ट पी में अब ज़रा थोड़ा सा इसको मैं उर्दू में बयान कर देता हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है। इस सर्किट को बेसिकली हम 15 वाट से 25 वाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि ये वाली जो एलईडी किट है ये 15 वाट की है, इस पे 15 एसएमडी लगे हुए हैं, एसएमडी एलईडी लाइट्स हैं। तो अगर इसके ऊपर 20 लगी हैं या 25 लगी हुई हैं तो जस्ट हमको एक ही रजिस्टर को पैरेलल में और लगाना होगा, यानी कि इस इजाफी रजिस्टर को पैरेलल में लगा के इस सर्किट को हम ज़्यादा वाट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सर्किट के बनाने के लिए ये मैंने एक ओल्ड कंप्यूटर का डेड मदरबोर्ड लिया है जिसमें से मैंने मुख्तलिफ़ कंपोनेंट को इस्तेमाल किया है। तो सर्किट को बनाने के लिए मैंने ये एक MOV यूज़ किया है जो सर्किट में आने वाले इजाफी वोल्टेज को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर UPS वगैरह के अगर इजाफी वोल्ट आते हैं लाइट कम या ज़्यादा होने की वजह से, तो ये ताकि ये इसको अफेक्ट ना हो। तो आगे एक मैंने 68 ओम का प्रोटेक्शन रजिस्टर लगाया है। अगर सर्किट में किसी किस्म का फॉल्ट आता है तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, मींस कि ये वाला खुद बर्न आउट हो जाएगा ये रजिस्टर और सर्किट बच जाएगा। तो आगे 2 कैपेसिटर यूज़ किए हैं मैंने। इन 2 कैपेसिटर के पैरेलल में एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया है। ये डिस्चार्ज रजिस्टर है जो इन कैपेसिटर की हाई जो कैपेसिटी होती है इस रजिस्टर के अंदर डिस्चार्ज होती है। आगे जो है एक ब्रिज रेक्टिफायर इसका इस्तेमाल किया गया है, MB10F इसका मॉडल नेम है। ये भी आपको ईज़िली मिल जाएगा किसी बोर्ड में से। इसके बारे में मैं मज़ीद
इंटरनल डायग्राम इसकी दिखाता हूँ। जैसे 4 डायोड को लगा के हम ब्रिज बनाते हैं, तो ये एक मुझे ब्रिज ही मैंने मुकम्मल यूज़ किया है यहाँ पे। इसके आगे मैंने ये कैपेसिटर यूज़ किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है 6.8 माइक्रोफैरड का। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसकी जगह 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे मैंने 22 ओम की ये रजिस्टर लगाई हुई है। ये रजिस्टर लगाने का मकसद यही है कि इसको मैंने 15 वाट तक इस्तेमाल किया है। अगर इसके मैं पैरेलल में ऊपर मैंने कोई रजिस्टर नहीं लगाई, लेकिन अगर मैं इसको और रजिस्टर बढ़ाता हूँ तो ये ज़्यादा वाट तक ये वर्क करेगा। तो अभी तो मैंने एक इसमें यूज़ की है, क्योंकि इसको ये मैंने 15 वाट की किट इस्तेमाल की है। इसी तरह आगे ये कैपेसिटर लगा हुआ है और आगे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और आगे इसी तरह फर्दर ये सप्लाई इसको 12 वोल्ट, जैसे एसी में डीसी में कन्वर्ट होता है, इसी तरह इसको डीसी में सप्लाई दी गई है, जिससे ये वर्क करता है। तो चलें इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये जो मैंने यूज़ की है ये क्या चीज़ है। तो इसके लिए मैं सिस्टम को, तो फ्रेंड्स ये MB10F है ब्रिज रेक्टिफायर। इसकी डायग्राम ये है, इसकी पिन डायग्राम ये है और इंटरनल सर्किट इसका ये है। मतलब ये कि एक ये ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें हम 4 डायोड को लगाकर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड इसके साथ मैंने एक हीट सिंक भी यूज़ किया है, जो इस प्रोसेसर वगैरह से मैंने उतार कर इसके नीचे लगाया है। इसको लगाने का मकसद यही है कि ये इसको ठंडा रखे और ये ज़्यादा देर तक वर्क करे। मीन्स के ये मैं इसको अभी 1 साल के लिए इसको पहले मैंने बनाया था और वीडियो आज बना रहा हूँ, और ये बहुत बेहतरीन वर्क कर रहा है हीट सिंक लगाने की वजह से। तो ये 2 से 3 साल तक ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इस ड्राइवर सर्किट और इसी LED किट को इसमें फ़िट कर। फ्रेंड्स अगर आप आने वाले वक्त में मज़ीद इस चैनल से अमेजिंग लो कॉस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को खुद बनाना चाहते हैं और अगर बनाने के दौरान अगर किसी किस्म की दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।